بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم تمام یہاں پر اس کی عبادت گاہ میں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 11 مہینے کی 12 تاریخ بروز اتوار ہم تمام نے ایک ٹاپک پر خدا کا کلام سنا تھا، اور ہمارا وہ ٹاپک تھا خداوند میں مسرور رہ۔ چونکہ وہ وقت پہلے ہو گیا، کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہماری سالویشن آرمی جو ہے 2024 میں ہمیں ایک تھیم دے گی، اور وہ تھیم بھی ہمارے اس ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گا۔ سالویشن آرمی نے ہمیں اس سال کا ایک تھیم دیا ہے، خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ کتنوں کو یہ کارڈ ملا ہے؟ اپنا کارڈ اوپر کریے گا، اپنا کارڈ اوپر کیجئے گا، اور عبادت کے آخر میں آپ سب کے ساتھ میں اس کارڈ کے ساتھ گروپ فوٹو لوں گا۔ چونکہ سالویشن آرمی نے ہمیں یہ تھیم دیا ہے، خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اب سالویشن آرمی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم تمام خداوند میں مگن ہو جائیں۔ سالویشن آرمی لیڈرشپ نے سوچا کہ بھئی اگر لوگ جو ہے وہ خداوند میں مگن ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو اس آیت کا بیانیہ ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ خداوند میں مسرور ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ یہاں پر ہم جتنے باشعور بیٹھے ہیں، جتنے ہم عقل مند بیٹھے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر مرادیں پائی جاتی ہیں، اور کہتا ہے کہ بس تو خداوند میں مسرور ہے۔ اور سالویشن آرمی لیڈرشپ نے بھی یہ کہا کہ بھئی لوگوں کو بتاؤ کہ وہ خداوند میں مسرور ہو جائیں۔ خداوند میں مسرور ہو جاؤ گے، خداوند میں مگن ہو جاؤ گے تو دل کی مرادیں جو ہیں یہ آٹومیٹکلی جو ہے یہ پوری ہو جائے گی، جو بھی ہے۔ تو ہمارا یہ تھیم ہے، اور اس لیے اس تھیم کے مطابق آج آپ سب کو یہ پیغام دیتا ہوں مثال کے طور پر۔ مسٹر پیٹر ہینلی، شاید اس کی تصویر مجھے کلیئرلی گوگل سے نہیں ملی، لیکن جیسے بھی ملی میں نے اس کو ڈھونڈا اور آپ کے لیے سیو کیا۔ یہ جناب پیٹر صاحب، پیٹر ہینلی، اگر یہ مگن نہ ہوتا اس کام میں، یا یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ مگن نہ ہوتا اس گھڑی کو بنانے میں، اگر یہ مگن نہ ہوتا اس ٹائم کو کلیئر کرنے میں، اگر یہ مگن نہ ہوتا کہ گھڑی بنائی جائے، تو شاید آج مجھے اور آپ کو کوئی وقت کا اندازہ نہ ہوتا۔ شاید آج بھی ہم وہ تیر والا سسٹم رکھتے کہ جیسے تیر یہاں پر آئے گا، سورج یہاں سے آئے گا، یہاں پر آئے گا، شاید ہم اس میں ہوتے۔ اور مسٹر پیٹر ہینلی نے مگن ہو کر، مسرور ہو کر یہ گھڑی بنانے میں کارنامہ سر انجام دے دیا، اور آج پوری دنیا کے اندر گھڑیاں ہیں اور وقت کی قدر پائی جاتی ہے۔ یہ بندہ مسرور ہوا۔ اسی طرح یہ دو جناب مارٹن کوپر اور ایرک صاحب جو ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ مگن ہوئے ٹیلی فون بنانے میں۔ انہوں نے دوریاں ختم کی ہیں، فاصلے ختم کیے ہیں۔ اگر یہ دونوں ٹیلی فون بنانے میں مسرور نہ ہوتے، مگن نہ ہوتے، تو شاید آج بھی خط و کتابت ہوتی۔ اور معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ میری ماسی یا پھوپھی مری نو سال ہو جاتا، مجھے سال بعد پتا لگا ماسی مر گئی، اگر وہ وقت ہوتا۔ یہ دونوں مگن ہوئے، اور ان دونوں نے اس میں مسرور ہو کر ٹیکنالوجی کو ڈھونڈا، بنایا اور ٹیلی فون عام کر دیا، اور آج ہم سارے فاصلے مٹائے بیٹھے ہیں اور ٹیلی فون کا استعمال زبردست ہے۔ یہ مسرور ہونے کی چند مثالیں ہیں، مگر ہمارا آج کا جو عنوان ہے جس اور آنکھوں کی خواہش، یہ اپنی نوعیت کا بڑا زبردست پیغام ہے۔ اس کو فیل کیجئے گا، اس کو اپنی زندگیوں میں فیل کریں۔
محسوس کریے جسم اور آنکھوں کی خواہش. یہاں پر ہم تمام جسم والے بھی ہیں اور آنکھوں والے بھی ہیں, اور ہماری آنکھوں کے اندر بھی خواہش ہے اور ہمارے جسم کے اندر بھی خواہشیں پائی جاتی ہیں. اور لفظ خواہش کے اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو لفظ خواہش کے لغوی معنی ہے آرزو, تمنا, ارمان, رغبت, شوق, مرضی, مطلب, مراد. یہ سارے الفاظ مل کر بیان کرتے ہیں کہ خواہش کیا ہے. جہاں پر آرزو ہوگی وہاں پر خواہش ہوگی, جہاں پر تمنا ہوگی وہاں پر خواہش ہوگی, جہاں پر ارمان ہوگی وہاں پر خواہش ہوگی, جہاں پر رغبت شوق ہوگی وہاں پر خواہش ہوگی, جہاں پر مرضی مطلب مرادیں ہوگی وہاں پر خواہش ہوگی. اور یہ سارے الفاظ مل کر بیان کرتے ہیں کہ خواہش کیا ہے. اور ہمارے قومی شاعر نے ایک بہت زبردست شاعر بولا ہے جس کا نام علامہ اقبال, اور علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پر دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, پھر بھی کم نکلے. آنکھوں کی خواہش دنیاوی طور پر میرے خیال سے مجھ سے زیادہ مثالیں آپ کے پاس ہوگی, میرے خیال سے مجھ سے زیادہ علم آپ کے پاس ہوگا, اور میں اپنی ناقص علم یا سمجھ کے مطابق سمجھتا ہوں کہ آنکھوں کی خواہش آج کل ان سے بڑھ کر شاید نہیں ہے. آنکھوں کی خواہش کیا ہے؟ میرے پاس اینڈرائڈ موبائل ہو اور وہ بھی آئی فون ہو, آنکھوں کی خواہش ہے. میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو اور بہت سارا ہو, یہ آنکھوں کی خواہش ہے. میرے پاس ایک چمکتی کار ہو, یہ آنکھوں کی خواہش ہے. میرے پاس ہیوی بائک ہو, یہ آنکھوں کی خواہش ہے. شاید اس سے بڑھ کر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن آج کل یہ سارے فہرست ہے کہ میرے پاس اچھا اینڈرائڈ موبائل ہو, میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو, میرے پاس گاڑی بھی ہو, میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہو, میرے پاس بنگلہ بھی ہو, میرے پاس نوکر چاکر بھی ہو. یہ ساری آنکھوں کی خواہش ہے. جب میں کسی کے ہاتھ میں آئی فون دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ہو. اگر میں کسی کے پاس بہت سارا پیسہ دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میری جیب میں بھی ہو. میں کسی کو چمکتی کار میں بیٹھا دیکھتا ہوں, دل کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ایسی کار ہو. میں کسی کے پاس اچھی موٹر بائک دیکھتا ہوں, دل کرتا ہے میرے پاس بھی ہو. جب میں دیکھتا ہوں یہ ہے آنکھوں کی خواہش ہے. جب میں دیکھتا ہوں یہ ہے آنکھوں کی خواہش ہے. اور میری آنکھیں چاہتی ہیں کہ اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہو, اس کی جیب میں ہے میری جیب میں بھی ہو, اس کے گھر میں ہے میرے گھر میں بھی ہو, اس کے ہاتھوں میں ہے میرے ہاتھوں میں بھی ہو. اور یہ ہے آنکھوں کی خواہش ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں جسم کی خواہش ہے تو جسم کی خواہش بھی شاید ہے کہ ان چند چیزوں سے بڑھ کر ہے, لیکن چند چیزیں جو ہے وہ بیان کرتی ہے. اچھے کلرفل کپڑے میں کسی کو پہنے دیکھتا ہوں اور اس کے جسم پر, اس کے بدن پر, اس کی باڈی پر وہ کپڑے بہت زبردست لگ رہے ہیں, اور میرے دل نے کیا کہ یہ بدن کے یہ والے کپڑے میرے بدن پر بھی ہو. اگر میں ان سردیوں میں دیکھوں تو سردیوں میں میرا دل کرتا ہے کہ جس کے دفتر میں گھر میں میں نے ہیٹر دیکھا, میرے گھر میں بھی ہیٹر ہو. لیکن آج کل گیس نہیں آ رہی, اے سی. دل کرتا ہے کسی کے دفتر میں بیٹھ کر آ جائیں, شادی کا دفتر میں جائیں گے, اے سی کی ہوا کھانے کے بعد گھر میں آ کر کہتے ہیں اٹھے بڑا سکون. یہ جسم کی خواہش ہے, جسم چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں شاید اس سے بڑھ کر آپ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو جسم چاہتا ہے, جو جسم کی خواہش ہے. اچھے کپڑے, سردی میں ہیٹر ہو, گرمیوں میں اے سی ہو, یہ سارے جسم کی خواہش کے اندر پائے جاتے ہیں. آنکھوں کی خواہش کے اندر پائی جاتی ہیں ساری باتیں. میرے ساتھ رہے گا. خداوند یسوع مسیح کو ہم تمام خدا کا کیا سمجھتے ہیں؟ سارے جواب دیجیے گا, کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو ہم خدا کا ایک لوتا بیٹا سمجھتے ہیں, خدا کا ایک لوتا بیٹا. اور بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 12 اور 13 ان 2 آیات میں لکھا ہے, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو خدا جو اس کے نام پر ایمان لاتے تھے وہ نام خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادہ سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. اب یوحنا رسول
रसूल बयान करता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन तमाम को खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, उन तमाम को जो खुदा के नाम पर ईमान लाते थे। और आगे बयान करता है कि वो ना तो खून से पैदा हुआ है, ना जिस्म की ख्वाहिश से, और ना ही इंसान के इरादा से पैदा हुआ है। वो किसी की ख्वाहिश से पैदा नहीं हुआ। मैं और आप ख्वाहिश से पैदा हुए हैं, मैं और आप जिस्म के इरादा से पैदा हुए हैं, मैं और आप चाहत से पैदा हुए हैं। लेकिन कहता है कि वो ना तो किसी इरादे से पैदा हुआ है और ना किसी के खुद से पैदा हुआ है, ना किसी की ख्वाहिश से पैदा हुआ है, बल्कि वो तो खुदा से पैदा हुआ है। और हम तमाम चिल्ला चिल्ला कर और अपने खून के हर एक कतरे के साथ बदन को सर से जुदा होते हुए देख कर भी यही कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो था, जो है, जो जल्द आने वाला है, वही खुदा का इकलौता बेटा है। और हम तमाम यही अकीदत के साथ अब तक नस्ल का नस्ल खुदावंद की बदसुर्गी में है। यशायाह की किताब देखी तो यशायाह 55 बाब में हर इतवार हम खुदा का कलाम सुनते हैं, मुख्तलिफ इबादतों में खुदा का कलाम सुनते हैं। यशायाह 55 बाब और इसकी 10वीं और 11वीं इन 2 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और राजगी का बायस होती है ताकि बोने वालों को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा और वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा। और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा था मौसर होगा। फिर यहाँ पर खुदा हमसे हम कलाम होता और खुदा कहता है जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है और फिर वो वापस नहीं जाती बल्कि वो जमीन को सैराब करती है, शादाब करती है, रुआदगी देती है और बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी देती है, उसी तरह मैं कलाम करता हूँ और ये कलाम मेरे मुंह से निकलता है। जब मैं कलाम करता हूँ मेरा मुंह बोलता है, मेरे मुंह से जब कलाम होता है तो ये कलाम मेरे पास बेतफसीर वापस नहीं आएगा बल्कि मेरी ख्वाहिश को पूरा करके आएगा। अगर मैंने मोहम्मदपुरा से कलाम किया है तो खुदा कहता है कि ये कलाम बेतफसीर वापस लाएगा। अगर मैंने मोहम्मदपुरा के किसी खानदान से कलाम किया है तो खुदा कहता है ये बेख्वाहिश वापस नहीं आएगा। अगर किसी शिफान के साथ मैंने कलाम किया है तो कहता है कि वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगा। आज जितना आसमान से बारिश होती है, बर्फ पड़ती है, वो वापस नहीं जा सकती बल्कि जमीन को सैराब करती, शादाब करती, राजगी देती है। और यही खुदा का कलाम है, हमें शादाब करता है, राजगी देता है और कहता खाने वाले के लिए रोटी और बोने वाले के लिए बीज मुहैया करता है। इसका मतलब है इस कलाम के वसीला से हमारे घरों के अंदर बरकतें हैं, खुशियां हैं, रौनकें हैं, शताबियां हैं। और कहता है कि मेरा कलाम मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगा। यहाँ पर खुदा कहता है कि मेरा कलाम बेतासीर वापस नहीं आएगा और मैं अपने कलाम के वसीला से जो बोलूंगा वो पूरा होगा, मेरी ख्वाहिश होगी। और खुदा कहता है अपने कलाम के वसीला से अपनी ख्वाहिश को पूरा करता हूं। ये मंजर बड़ा अजीब मंजर है। कभी कभी मेरा इस मंजर को पढ़ने को या इस मंजर को देखने को दिल नहीं करता, लेकिन सदाकत है। काश ये मंजर ना होता, हम आज भी मोहम्मदपुरा नहीं फरदौस में होते। ये मोहम्मदपुरा ना होता, ये फरदौसपुरा होता। अगर ये मंजर ऐसा ना होता, हुआ क्या? अभी यूहन्ना रसूल बयान करता है क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। अब कहता है कि जो कुछ दुनिया में है, जिस्म की ख्वाहिश है, आंखों की ख्वाहिश है, जिंदगी की शेखी है, ये 3 चीजें यहाँ पर पाई जाती है, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। और यही 3 चीजें हमें बागे अदन में नजर आती है। बागे अदन के अंदर इब्लीस जो था वो इंसान की कमजोरी को ढूंढ रहा था और इब्लीस ने किया क्या? इब्लीस ने यही 3 चीजें अम्मा हवा के आगे रख दी और अम्मा हवा से कहता है और उसका लाभ करता है। और बागे अदन में इब्लीस ने पेशकश की और पहले नंबर पर उसने कहा क्या तुम्हें ये खुदा ने फल खाने को मना किया? और अम्मा कहती है कि हाँ हमें खुदा ने मना किया है, हम फल नहीं खा सकते। और इब्लीस कहता है कि तुमसे खुदा ने एक बात छुपा दी है, तुम्हारे खुदा ने तुमसे एक बात राज में रखी है, तुम
जिस रोज ये फल खाओगे तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे। अभी यहाँ पर उसने पहले जिंदगी की शेखी की पेशकश की है और कहता है कि हवा जिस रोज तू ये फल खाएगी तो खुदा की मानिंद बन जाएगी। अब हवा के अंदर ये बात है, अच्छा मैं भी खुदा बन जाऊंगी, मैं भी तख्त पर बैठी होंगी, फरिश्ते मुझे भी सजदा करेंगे, मेरी भी इबादत करेंगे, मेरी भी पूजा करेंगे, मेरे आगे भी नाचेंगे और मैं जिधर जाऊंगी जाऊंगा, जिधर जाऊंगी आऊंगी। क्या मैं भी ऐसा करूंगी? और प्लीज कहता कि हाँ ये फल खा और जिंदगी की शेखी मार ले, जहां पर जा, जहां पर मर्जी आ जाओ, कुछ मर्जी कर, ये फल खा। और अब्लीस कहता है कि तुम खुदा ताला की मानद बन जाओगे। पहली पेशकश ये की कि तू जिंदगी की शेखी मार, और दूसरे नंबर पर औरत ने जब वो दरख्त का फल देखा उसे अच्छा लगा। अब जब उसने देखा दूसरे नंबर पर उसकी आंखों की ख्वाहिश अब उसके सामने आ गई है। फल को देखती है और देखने में अच्छा लगता है, चमकदार लगता है, बहुत खूबसूरत नमाज में मालूम होता है, और उसकी आंखों की ख्वाहिश जो है अब उसके सामने आ चुकी है। और तीसरे नंबर पर कहती है कि ये अक्ल बख्शे के लिए खूब है और उसने ये जिस्म की जरूरत होते हुए खा लिया। तीन चीजें पेश की, जिंदगी की शेखी मारने के लिए तुम खुदा की मानद बन जाओगे, देखने के लिए फल अच्छा है, और खा लोगे तो अक्ल बख्शेगा। ये तीन चीजें इब्लीस ने अम्मा हवा को पेश कर दी। और यूहन्ना रसूल यही करता है, क्योंकि दुनिया में जो है यानी जिस्म की ख्वाहिश है, आंखों की ख्वाहिश है और जिंदगी की शेखी है, ये बाप की तरफ से नहीं है बल्कि दुनिया की तरफ से है, इब्लीस की तरफ से है। और बहुत जल्द हम तमाम रोजे मनाने वाले हैं। बाइबल बयान करती है ये मत्ती की इंजील उसके चौथे बाब में, जब यहूदा ने यूसुफ से 40 दिन रात का फाका किया और आकर क्या हुआ, भूख लगी और आजमाने वाला आ गया। और जब यीशु को आजमाने वाला इब्लीस आया, आगे अदन में यही तीन पेशकश उसने अम्मा हवा को दी और उसने तीनों की तीनों अपना ली। अब यही तीनों पेशकश यीशु को की, लेकिन उसकी तरतीब बदलनी है। अब जब आजमाने वाला इब्लीस यीशु के पास आया और यीशु को भूख लगी हुई है और यीशु से कहता है भाई इस पत्थर से फरमाओ के रोटी बन जाए, क्योंकि तू फरमाएगा और ये पत्थर रोटी बन जाएंगे, तो फरमा और ये रोटी बन जाएंगे। अब इब्लीस को पता है कि इसे भूख लग चुकी है और रोटी इसकी जिस्म की जरूरत है, जिस्म की ख्वाहिश है रोटी। अब भूख से ये नडाल है और जब ये भूख से नडाल है तो मैं इसे आजमाऊंगा, मैं कहूंगा तो खुदा का बेटा है, कुदरत तुझ पर आशिकारा है, तेरे कहने से कलाम पूरा हो जाएगा, तो इस पत्थर को कहेगा रोटी बन जाओ, रोटी बन जाएगा। क्योंकि अभी यीशु के जिस्म की ख्वाहिश है रोटी, क्योंकि ऐसे भूख लग चुकी है। और इब्लीस आकर कहता है कि मैं क्या ऐसे पत्थर से रोटी बन जाए, और यीशु मसीह ने उसका सामना करते हुए कहा चल भाग, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी से पैदा है, रोटी से जिंदा नहीं रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से भी। तो मुझे क्यों समझता है, चल यहां से भाग जा, मैं इस पत्थर से नहीं खाऊंगा। हाँ मैं मानता हूं कि मैं मानो मैं खुदा का इकलौता बेटा हूं, खुदा की जात मुझ में मुहस्सिन है और मैं खुदा की जात में पिता हूं, मैं फरमा दूंगा तो हो जाएगा। लेकिन तो भाग, मैं तो अपने बाप के कलाम को रोटी समझ कर खाऊंगा और यही मेरी हड्डियों को मेरे बदन को खो देगी। और इंसान रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से भी जीता रहेगा। पका दिया, जिस्म की ख्वाहिश लेकर आया। फिर कहता है यीशु को हैकल के किनारे पर खड़ा कर दिया, हैकल के किनारे पर खड़ा कर दिया। अभी यहां पर कूद गया, नीचे गिर और कहता है कि तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, यहां से नीचे कूद जा, शेखी मार। जब तू कूदेगा तो फरिश्ते अपने पंख मारते हुए आएंगे और तुझे अपने हाथों पर उठाएंगे, तुझे सर तक नहीं पहुंचेगी, तो नीचे नहीं गिरेगा, नहीं मिलेगा। तो यहां पर से सलाम बार कूद जा। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि चल भाग, क्योंकि मेरे खुदा का कलाम कहता है कि खबरदार। तो खुदावंद पे खुदा को ना आजमाना, यहां पर उसने उसकी आजमाइश को भी रद्द कर दिया। और फिर उसने तीसरा बार किया आंखों की ख्वाहिश, उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वो
ऊंचे पहाड़ पर दुनिया की सल्तनत दिखाई है, हुकूमतें दिखाई है, शताब्दियां दिखाई है, पहाड़ दिखाए हैं, और कहता है कि बस तो मुझे सिजदा कर, तो मेरे आगे अपना सर झुका दे, तो मुझे तस्लीम अगर खुदा को छोड़ दे। ये सारी सल्तनतें, ये सारी हुकूमतें, ये सारी शताब्दियां, ये सारे पहाड़, ये सारे टीले, ये सारी वादियां, ये सारी नदियां, ये सारे दरिया, ये सारे फल, ये सारे दरख्त, ये सारे इंसान, ये सारी हुकूमतें मैं तुझे दे दूंगा, बस मुझे सिजदा कर। अभी यहाँ पर उसने आंखों की ख्वाहिश को खुदावंद के सामने रख दिया है, और यीशु मसीह को सारी सल्तनतें दिखाई है, सारी हुकूमतें दिखाई है, सारी दीवारें दिखाई है, सारे पहाड़ दिखाए हैं, सारी बर्फें दिखाई है, सारी नदियां वादी है, सब पहाड़ दिखाए, और कहता है मुझे सिजदा कर, और जब तुम मुझे सिजदा करेगा मैं ये तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह यहाँ पर कहता है इब्लीस चल भाग के दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को ही, सब मेरे साथ बोलेगा, तो खुदावंद अपने खुदा को ही, खुदावंद अपने खुदा को ही, खुदावंद अपने खुदा को ही, अपने खुदा को सिजदा करना। तो चल भाग। ये तीनों पेशकश अम्मा हवा को दी, और अम्मा हवा ने तीनों की तीनों कबूल कर ली, और यही तीनों उसने बदल बदल कर यीशु के सामने रखी, और यीशु मसीह ने भेज दो चल भाग। और यही तीनों पेशकश हमारे सामने है। इब्लीस की पेशकश में तब्दीली नहीं है। हमारे पास आता है, जिस्म की क्या जरूरत है वही हमारे सामने रख देता है, देखता है कि आंखों की क्या ख्वाहिश है वो ही सामने रख देता है, देखता है कि भाई ये कहां पर शकी बात बन जाएगा वो ही सामने रख देता है, और हम इन तीनों में ही फंस कर आजमाए जाते हैं, और ये तीनों ख्वाहिशें ही हमारे सामने बराबर रहती हैं। और जहां पर भी जाते हैं, कभी कभी दिल करता है कि मैं शेखी मारूं, कभी कभी दिल करता है कि मैं यूनिफॉर्म को बड़े तरीके से पहनकर लोगों के सामने खड़ा हो जाऊं ताकि शेखी मारूं, पता चले तो कैप्टन साहब आगे नहीं। कभी कभी लगता है, कभी कभी आंखों की ख्वाहिश है मेरे सामने, कभी कभी जिस्म की ख्वाहिश है मेरे सामने, और यही तीनों इब्लीस आज तक मेरे सामने, हमारे सामने रख कर हमें आजमा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, मैं साथ रहेगा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिसने जिस किसी को बुरी निगाह से देखा, बुरी ख्वाहिश देखा, वो अपने दिल में क्या कर चुका, वो बदी कर चुका, वो बदी कर चुका। इसलिए मेरे तमाम मोहतरम अजीज हो, यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:43 की 43 और 44वीं आयत में फरमाया है, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। मेरी बातों को मैं सादा कलाम करता हूं, मैं सीधी बातें करता हूं, तो मेरी बातों को क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं सीखते, क्यों नहीं उसे अपनाते? तो मेरी बातों को क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुनना नहीं चाहते, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही से कहता है क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। यहाँ पर खुदा ने कहा है, तो मेरा कलाम क्यों नहीं समझते, क्यों मेरी बातों को सुनते नहीं? क्या तो मेरे कलाम को सुनना नहीं चाहते, तो इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। और ये तीनों ख्वाहिशें इब्लीस की है। इब्लीस हमारे सामने आंखों की ख्वाहिश रख देता है, ये उसकी ख्वाहिश है। इब्लीस हमारे सामने जिस्म की ख्वाहिश रख देता है, क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश है। इब्लीस हमारे सामने शेखी रख देता है, क्योंकि ये उसकी शेखी है, और कहता है कि तुम उसके ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो, वो तो झूठा है, उसमें सच्चाई नहीं है, बल्कि वो झूठ का बाप है। मुकद्दस पालूस फरमाता है, रोमियो 13 की 13 और 14 आयत में फरमाता है, जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से, जैसा चले ना के नाच रंग और नशाबाजी से, ना करना नारी और शहर परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो, और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो, जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो, बल्कि यही कहो कि मैं तो खुदा में मगर रहूंगा, मेरी मुरादें पूरी करने वाला और मैं बाला पर बाप की ताली तरह तो खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, जो फरमाता है कि ऐ मेरे बेटो, ऐ बोझ के दबे हो मेरे पास
तो मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर दूंगा, मैं तुम्हारा जुआ मेरा जुआ नरम और मुलायम है। मैं तेरे दिल की मुरादों को जानता हूँ, मैं तेरी जरूरतों को जानता हूँ, मैं तेरी ख्वाहिशों को जानता हूँ। बस मुझ में मगन हो जा, मुझ में आनंद पा, मुझ में शादमान हो जा और मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरी कर दूंगा, मैं तेरी ख्वाहिशों को पूरी कर दूंगा। और इसलिए बाइबल मुक़द्दस में खुदा का वादा करता है कि हर शख्स अपनी ख्वाहिशों से भागे बढ़ के खुदा के आगे आकर झुक जाए और कहते कि ऐ बाप मैं तेरे आगे मिन्नत करता करती कि अगर तो तेरी मर्जी है तो ये मुझे मिल जाए, अगर तेरी मर्जी नहीं तो मेरी भलाई हो। और आलमे वाला पर खुदा हम तमाम की भलाई चाहता है और यही चाहता है हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे, खुदा ये चाहता है। तो हम तमाम अपनी ख्वाहिशों को उतारते हैं और अब वक्त है कि हम अपनी सारी नेक ख्वाहिशें खुदा के सामने रखें, अपने सुरों को झुकाकर जितनी ख्वाहिशें हैं, जितनी दिल के अंदर मन के अंदर ख्वाहिशें हैं, नेक ख्वाहिशात को खुदावन की हजूरी में रखें, नेक तमन्नाओं को खुदावन की हजूरी में रखें, नेक इरादों को खुदावन की हजूरी में रखें और कहते कि ऐ खुदा तेरी कुदरत अबदी है और तू शिकारा कर दे और मेरी इन ख्वाहिशों को तू पूरा कर सकता है। और इब्लीस भी इकरार करता है कि ऐ खुदा अगर तू कहेगा ये पत्थर भी रोटी बन जाएंगे। और हमारा खुदा कुदरत का मालिक और हमारे लिए वो आसमान भी खोल देता है। और इसलिए आज अपनी ख्वाहिशात उसके सामने रखते हैं। खुदा देख तेरे बेटे और बेटियां आज तुझे महसूस करते हैं, आज तूने जाहिर कर दिया कि इब्लीस का वही पैगाम जो उसने भागे आदम के अंदर से शुरू किया, हर आदम के पास वो इसी बात को लेकर आया है, हर हवा के पास वो इसी बात को लेकर आया है और हर हवा के सामने, हर आदम के सामने उसने यही तीनों चीजें रख दी है। उसने आंखों की ख्वाहिश रख दी है, जिस्म की ख्वाहिश रख दी है, जिंदगी की शक्ति रख दी है और इन तीनों में वो हमें फंसा कर आजमाता है और हम गिर जाते हैं। आज तू जोर दे के अपने इसका मुकाबला करें, आज जोर दे, आज कुव्वत दे, आंखों की ख्वाहिश पाके, जिस्म की ख्वाहिश पाके, जिंदगी की शक्ति पाके और हम तमाम खुदावन तेरे कलाम में बेबस हो जाए। प्रेज़ हालेलुया। खुदा पूरी जमायत आज के इस ख्याल के मुताबिक जो तूने हमें समझा दिया है, इब्लीस वो ही ताना वार घुमा कर फिर हम पर करता और हमें गिराता है। अब हम इन तीनों ख्वाहिशात से बाकी और इब्लीस का मुकाबला करें। अब वक्त है कि इब्लीस हमसे बाकी, इब्लीस गिर जाए क्योंकि वो गिरा हुआ है। तो खुदावंद हमें कुव्वत दे कि हम इब्लीस को गिरा दें। आज इस खूबसूरत पैगाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा हमें इस ख्याल